Good evening friends, this is Rohit sir from KP Academy of Diploma in Engineering classes. In this video lectures, we are going to see a mechanism and inversion of mechanism. In the previous video lectures, we have discussed different types of joints in a kinematic chain, definition of kinematic chain. Kinematic chain is what? It is a combination of two or more pairs, or it is a combination of pairs with each link having a two pairs and their relative motion between them is either successfully or completely constrained. And in the previous video lectures, I taught all those parts with the clean and neat manner. Please go and watch that video. Okay guys, so mechanism and inversion of mechanisms. First, what is a kinematic chain? If I draw a kinematic chain, if I draw a one link, it will look like this. Okay, then I draw another link, it will look like this, then third link and then fourth link. So this is my what? A simple kinematic chain. Why I call this a simple kinematic chain? A kinematic chain with maximum 4 links. A kinematic chain with the maximum 4 links is called as a simple kinematic chain when 4 links are there. But a kinematic chain with more than 4 links is called as a compound chain. It's called as a compound chain. And a kinematic chain with one link is fixed. This sign denotes that link is fixed. So this is link 1, link 2, link 3, link 4. The kinematic chain with one link is fixed. It's called as a mechanism. So correspondingly, it is called as a simple mechanism, and this is called as a compound mechanism. Understanding? A mechanism with the 4 links is called as a simple mechanism. A mechanism with the more than 4 links is called as a compound mechanism. Mechanism is what? A kinematic chain with one link is fixed. Okay, what I'm trying to explain, please try to understand. Simple thing. A kinematic chain with one link is fixed. It's called as simple mechanism. Okay, a kinematic chain with the one link is fixed is called as a mechanism. It's called as a mechanism. It's called as a mechanism only. A mechanism, a fixed link, usually called as a frame. Mechanism with 4 kinematic link, it's called as simple mechanism. Mechanism with more than 4 kinematic link, it's called as compound mechanism. A mechanism with the 4 links is called as a simple mechanism, which is nothing but a 4-bar chain mechanism, which we also call as a 4-bar chain mechanism. तो गाइस, जब मेरी कोई भी लिंक फिक्स नहीं है तब हम इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक चेन बोलते हैं. लेकिन अगर मेरी कोई भी एक लिंक फिक्स हो गई तो इसको हम काइनेमेटिक चेन न बोल के क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं. सो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया रहेगा. ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहेगा. अभी मैकेनिज्म क्या है? लुक एट योर वॉच. तो वॉच को देखते हो तो आपको वो क्या दिखती है? वो मशीन है. बट वॉच को अगर आप रिमूव करोगे, उसके अंदर झांक के देखोगे तो गियर एक दूसरे से अंदर कनेक्टेड है, फिर निडल कनेक्टेड है, फिर बाकी सब चीजें, फिर
वो जो अंदर चल रहा है जिसकी वजह से मशीन हमको लग रही है, वो अंदर के जो भी है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे कंपोनेंट को ज्वाइन करके जो भी बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म. सो काइनेमेटिक चेन विद द वन लिंक इज फिक्स इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म. ओके, अब फिक्स लिंक, जो भी लिंक फिक्स रहेगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिंक 1 फिक्स है तो इसको मैं लिंक 1 को क्या बोलूंगा, हमेशा फ्रेम. मैकेनिज्म विद द मैक्सिमम 4 लिंक, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल मैकेनिज्म. मैकेनिज्म विद द मोर देन 4 लिंक इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड मैकेनिज्म. आफ्टर दिस मैकेनिज्म और मशीन का सिंपल सा डिफरेंस है, आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लीज गो एंड रीड दैट डिफरेंस. ठीक है, अभी इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या है. इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या है कि मैकेनिज्म तो मैंने बताया, मैकेनिज्म तो हम लोग ने बताया, अ प्रोसेस ऑफ fixing different link each time to get different mechanisms is called inversion of mechanism. It's called inversion of mechanism. Or we can say process of fixing one by one link in order to get different mechanisms is called as inversion of mechanism. So let's take I already told you mechanism with 4 links it's called as simple mechanism or 4 bar chain mechanism, right? 4 bar chain mechanism. Now if I take a 4 bar chain mechanism, okay, if I take a 4 bar chain mechanism like this, okay, like this only, and if I have this like this, और मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. If I have a 4 bar chain mechanism, now if I fix, I have this link number 1, link number 2, link number 3, link number 4. मैंने अंदर दिखाया है बट आप समझ के ले लेना. If I fix this link, then यहाँ पर link 1 act as a frame हो जाएगी, और ऐसे इन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट इन्वर्जन. ठीक है, दूसरा केस रहेगा कि अगर मैंने यही मैकेनिज्म इस तरीके से बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनाया, ठीक है, देखिए ध्यान देना मैं क्या बना रहा हूं. ठीक है, ये लिंक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इस कंडीशन में 4 ही लिंक है, तो इस कंडीशन में मैंने सेकेंड लिंक को फिक्स कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, लिंक नंबर 2 जो हो जाएगी, लिंक नंबर 2 जो यहाँ पर होगी, वो लिंक 2 मेरी यहाँ पर क्या रहेगी, फ्रेम हो जाएगी, और इसको बोलूंगा मैं सेकेंड इन्वर्जन. और ऐसे ही तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 4 बार चेन मैकेनिज्म ही है, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर मैंने यहाँ पर थर्ड लिंक को फिक्स किया तो ये हो जाएगा लिंक 3 मेरी क्या हो जाएगी, फ्रेम, और इसको बोलूंगा मैं थर्ड इन्वर्जन. और सिमिलरली अकॉर्डिंगली मुझे क्या मिलेगा, फोर्थ इन्वर्जन. The process of fixing link different links in order to get different mechanism, this is called as an inversion of mechanism. मगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिंक 1 को फिक्स किया तो मुझे कुछ वाइपर जैसा, गाड़ी के वाइपर अगर आपने देखे रहेंगे तो वाइपर जैसा, या फिर इंजन के जैसा, इंजन का अगर आपने नीचे के पहिए देखे रहेंगे तो इंजन के जैसा एक मैकेनिज्म मिलता है जिसको हम लोग कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. बट अगर भी देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट से लेके सेकेंड में कुछ डायमेंशंस में कुछ बदलाव किए हैं. अगर डायमेंशन में कुछ अगर मैं बदलाव कर रहा हूँ ना गाइस, तो इसकी मोबिलिटी मतलब चलना फिरना, इसका जो है ये चलना फिरना, अगर सेकेंड फिक्स की तो इतना
उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं होगा, ये कुछ ऐसे ऐसे ही रोटेट करेगा। ये फिक्स है, अगर ये फिक्स था तो कुछ ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, अगर ये फिक्स हो गया तो ये भी कुछ ऐसे ऐसे ही रोटेट करेगा, बस इसकी मोबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपकी इसके डायमेंशंस को अगर कम ज्यादा करो तो इसकी मोबिलिटी चेंज हो जाएगी। ऐसी लिंक नंबर 3 है, लिंक नंबर 3 का भी ऐसा ही है, कुछ ऐसे ऐसे ये घूमेगा, कुछ भी हो सकता है। तो अलग मैकेनिज्म्स मुझे, अगर मैंने डायमेंशंस को चेंज किए तो अलग अलग मैकेनिज्म्स मुझे मिल जाते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म एंड इट्स इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या है, ये सिंपल सी भाषा में आपको मैंने समझा दिया। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म होने के बाद हमारे पास कौन से टाइप ऑफ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म है, तो कौन से टाइप्स के काइनेमैटिक चेन है और अकॉर्डिंगली कौन से टाइप्स के इन्वर्जन है, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे। ओके गाइस, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो इन्वर्जन है, हमारे पास वो है 4 बार चेन मैकेनिज्म। फर्स्ट सबसे पहला जो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म है वो है 4 बार चेन मैकेनिज्म। ठीक है, 4 बार चेन मैकेनिज्म के रिगार्डिंग हम लोग अभी यहाँ पर बात करेंगे। अभी 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है हम लोग ने, मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। द काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक ठीक है, 4 बार चेन मैकेनिज्म। 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में मैंने पहले ही बात की है। 4 बार चेन मैकेनिज्म में सबसे पहला जो है वो है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, जिसमें मेरे पास 4 लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। ठीक है, अगर मैंने लिंक 2 और लिंक 4 लगभग सेम ही डायमेंशन की रखी, मतलब अगर ए बी सी और डी में बोलूं, एंड लिंक ए बी जिसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी लिंक सी डी की, और लिंक ए डी की लेंथ ऑफ लिंक ए डी की अगर मैंने ऑलमोस्ट सेम रखी लेंथ ऑफ लिंक बी सी से, तो मुझे जो मैकेनिज्म मिलता है, जैसे कि ऐसे 4 बार चेन में विथ लिंक 1 इज एक्ट एज अ फ्रेम, ये लिंक क्या हो गई यहाँ पर फिक्स हो गई, विद द लिंक 1 इज एक्ट एज अ फ्रेम। तो ऐसे प्रकार के मैकेनिज्म को बोलते हैं कपलिंग मेड ऑफ लोकोमोटिव 4 बार चेन का फर्स्ट इन्वर्जन। समझ में आ रहा है? 4 बार चेन का फर्स्ट इन्वर्जन। ओके गाइस, 4 बार चेन का फर्स्ट इन्वर्जन मुझे मिल रहा है। अभी एग्जाम में लिखते समय आपको लिखना कैसा है कि 4 बार कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इट इज एन इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव ये किसका इन्वर्जन है? इट इज एन इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। वेट अ सेकंड, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव ये किसका इन्वर्जन है? It is an inversion of 4 bar chain mechanism. This will be your first statement. Second, it consisting of 4 links. Link number 1, link number 2, link number 3, link number 4. Where link number 1, it is a fixed link which is act as a frame. मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको लिखना है, ये मैं यहाँ पर लिख के नहीं बता सकता. It will very time consuming. Link number 2 जो है, it is a driving crank which is a rotating link. Link number 3 is called as a coupling rod which is oscillating link, and link number 4 it is a driven crank which is also rotating link. Okay, so simple है, ये है कि मेरा फर्स्ट इन्वर्जन कैसे फॉर्म हो गया, मैंने कैसे लिंक कैसे फिक्स करी है, इधर मेरा इन्वर्जन खत्म होता है. अगर आपको इसको आगे एक्सप्लेन भी करना तो आप कर सकते हो. when link 2 rotates along with the circular path, link BC means link 3 is going to oscillate about the points B and C, and the link 4 also rotate. So this
4 bar chain mechanism is used to transfer one rotary motion into another rotary motion. ठीक है, एक रोटरी मोशन ऑफ लिंक की दूसरे रोटरी मोशन ऑफ लिंक तक पहुंचाने के लिए हम जो मैकेनिज्म्स को करते हैं उसको बोलते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म, व्हिच इज नथिंग बट अ कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। इसके कुछ कंडीशंस भी है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके बाद का जो सेकेंड इन्वर्जन है मेरे 4 बार चेन मैकेनिज्म का, यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड इन्वर्जन है या फिर सेकेंड अगर है वो है हमारे पास यहाँ पर है क्या है, बीम इंजन। हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीम इंजन। बीम इंजन में होता क्या है गाइस, बीम इंजन में देखिए, बीम इंजन में मेरे पास पिस्टन, ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यहाँ पर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, समझ के लिए लेना। अभी यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर मेरे पास सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन किसी राइट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो लिंक नंबर 1 है, ये पूरी जो लिंक है जो मैंने अभी यहाँ पर ब्लैक मार्कर से दिखाई है, ये जो पूरी जो लिंक है सिलेंडर से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये जितनी भी मैंने फिक्स दिखाई है ये लिंक नंबर 1 है, विच इज एक्ट एज अ फ्रेम। लिंक नंबर 2 मेरे पास क्या है, लिंक नंबर 2 मेरे पास ये क्रैंक है। लिंक नंबर 3 मेरे पास ये जो है, ये इसको बोलूंगा मैं कनेक्टिंग रॉड, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड। लिंक नंबर 3 के बाद लिंक नंबर 4 क्या क्या हो जाती है, ये ऑक्सिलेटिंग रॉड विथ पिस्टन अरेंजमेंट, पिस्टन ऑक्सिलेटिंग रॉड, पिस्टन रॉड एंड पिस्टन, ये पूरे तीनों को मिला के ये क्या हो जाती है, क्योंकि एक ही इसको कनेक्टेड है, इनको बोलूंगा मैं लिंक नंबर 4, ठीक है, इनको बोलेंगे हम लोग लिंक नंबर 4, ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि यही फिर से अगर आपको पूछा एग्जाम में कि सर एक्सक्यूज मी गाइस, बीम इंजन हमको पढ़ाइए, ठीक है, तो बीम इंजन क्या है। बीम इंजन आप जैसे मैंने पहले बताया था, बीम इंजन फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म, इट कंसिस्टिंग ऑफ 4 लिंक्स। Link number 1 it is a fix which is act as a frame. Link number 2 it is a driving crank which is a rotating crank. Link number 3 it is a connecting rod. Link number 4 is the oscillating rod with the piston rod and the piston arrangement is as shown in the figure. अभी इसके बाद में आपको अगर प्रोसेस लिखनी है तो when the link number 2 rotates about the fixed point O, you can say about the fixed point O is as shown in the figure. Connecting rod will oscillate about point this. Then the because of the ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये पर्टिकुलर अबाउट पॉइंट ई पे लिंक नंबर 4 क्या करेगी, एंड देन अबाउट पॉइंट ई द कपलिंग रॉड और द लिंक नंबर 4 विल ऑक्सिलेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट piston rod will reciprocate or move in vertical direction. That's why piston will reciprocate inside the engine cylinder. Means in order to convert rotary motion into reciprocating motion of piston inside the cylinder, we use a beam engine. Guys. Okay, so ये था मेरा क्या था, ये हमारे पास आया था हमारा बीम इंजन। इसके बाद में मेरे पास यहाँ पर वैट इंडिकेटर है और वैट मैकेनिज्म है, विच इज नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में यूज नहीं होते। वैसे वैट मैकेनिज्म्स, वैट इंजन ये पैंटोग्राफ के जैसा ही है, तो पैंटोग्राफ हम लोग स्पेशल मैकेनिज्म से जाके पढ़ने ही वाले हैं। वैट मैकेनिज्म नॉर्मली स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मैकेनिज्म्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग लेके आएंगे फर्स्ट सिंगल स्लैटर क्रैंकशैफ्ट मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स के साथ, जिसमें हम लोग विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म साथ में देखेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।